इसमें चलेगा पूरा बैलेंस में हो जाए, ठीक है। हम ठीक हो आप लोग धीरे छोड़िएगा आस्ते आस्ते, ठीक है। आस्ते आस्ते आप लोग छोड़िएगा, पूरा आस्ते नहीं करना बेटा मुंतसिर इधर पॉज करिए। किसका चलिए Rahmatul
छोटा रे टूट गया। पकड़े हुए हैं, ले ले रस्सी ले, ले ले रस्सी ले। उसमें जोड़ करके बांध दीजिएगा, ऊपर से टांग मार अरे सीधा ले, उठ खड़ा हो, सीधा हो, सीधा हो, हटे ना वजह से। अरे कमर में जोड़ रहे हैं, खड़ा हो जा। सीधा फाक जिला दे, फाक करे ना, सीधा आ जाओ। जो डाली ना मार लो, जो टाइट कर लेना। आप पहचानने वाले, मानने वाले जो भी हमारे मुरीदीन भाई हैं या हमारी बहन हैं, उनसे गुजारिश है कि महफिल का आगाज जो इब्तिदा ताकि मुक़द्दस कुरान पाक से शुरू हो रहा है, लिहाजा जो इधर उधर हज़रात घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ और बैठकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। महफिल का आगाज जो इब्तिदा ताकि मुक़द्दस कुरान पाक से शुरू हो रहा है, हज़रात से गुजारिश है कि मस्जिद में आप हज़रात तशरीफ़ रखें और सवाब-ए-दारैन हासिल करें।
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ. حضور قبلہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ خاص حضرہ شریف میں چلے آئے. حضور قبلہ تشریف فرما ہے. جو بھائی لوگ حضور قبلہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ خاص حضرہ شریف میں قبلہ تشریف فرما ہے. یہ بھائی صاحب حضور قبلہ سے ملاقات کرتے چاہیں خاص حضرہ شریف میں چلے آئے. حضور قبلہ تشریف فرما ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشر من رسوله يأتي من بعده اسمه أحمد. اور خوشخبری دینے والا ساتھ اس پیغمبر کے آئے گا پیچھے سے اس کا نام احمد ہے. وَهُوَ الَّذِي وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ ہے جس نے بھیجا 20 انپڑھوں کے پیغمبر انہی میں سے پڑھاتا اوپر ان کے نشانیاں اس کی پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب و حکمت اور تحقیق کے پہلے سے البتہ گمراہی ظاہر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف سلام على الياسين سلام على الياسين سلام على المرسلين 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 والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. آمین اللہم آمین. الہی وجہک تمام پر آمین. الہی وجہک رواتی و روشن جمد صدی روشن گھر مولا سے سفر غمل سکیوں کی پیشے چلتے جاتی کی واقع شرمت اللہ. الہی وجہک رواتی و روشن جمد صدی روشن گھر مولا سے سفر جمد حق کی غمل سکیوں کی پیشے چلتے جاتی کی واقع الہی وجہک رواتی و روشن جمد صدی روشن گھر مولا سے سفر جمد حق کی غمل سکیوں کی پیشے چلتے جاتی حقیقت مرد شکر آمین. الہی وجہک ہم لوگ وجود پر آمین. الہی وجہک ہم لوگ سوات پر آمین. الہی وجہک ہم لوگ دل پر آمین. الہی وجہک ہم لوگ روح پر آمین. وہ آ رہا ہے کھلانے میں ٹھیک হ্যালো آمین اللهم إنك أنت التواب الرحيم
নিশ্চয়ই তুমি আমার তওবা কবুলকারী মেহেরবান বা দয়ালু। ইয়ার পর আল্লাহ দেখো কি দেখিতে হুজুর কিবলার সঙ্গে মোলাকাত করতে চান, খাস হুজরা চলে আসুন। হুজুর কিবলা খাস হুজরা শরীফে তশরিফ ফরমান। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, মসজিদ ফরমাগা মদিনা, মসজিদ ফরমাগা মদিনা, মসজিদ রফিক গা মদিনা, মসজিদ ফারুক গা মদিনা, মসজিদ ফারুক গা মদিনা। নারে তাকবীর, নারে तकबीर। मुर्शिद फारूक हमारी साहब का कुरान बयान नहीं छोड़े, मुर्शिद फारूक हमारी साहब का कुरान बयान नहीं छोड़े, मुर्शिद फारूक हमारी साहब का हुजरा नहीं छोड़े। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम फिर नमाज के बाद फिर मन का तो ये जितना बच गया अभी नमाज के टाइम है वो सफा करते निकल जाइए। नमाज के बाद फिर आप फिर सब दिया जाएगा 1 घंटा जी हजरत जी अल्लाह रहम करे। जल्दी 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 अच्छा तो मन का नहीं मिला है अल्लाह ठीक है सब तलवा आने वाला है इनका एक बार अपना আপনাদের जल्दी 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 आगे तुम आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़िए। वो लोग पीछे से लाइन लग जाएगा, वो लोग पीछे से लाइन लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप लोग। चिंता कर लेना ठीक है जी जी हम सब बहुत जी जिंदगी अब लाइन में रहेगा ये अब लड़कियां तो लाइन में लगी हो रही है ना, वो लाइन में लगी तो लड़की है। अब तो वोलेंटियर वाला हो ना सामने खड़ा। हां भेजवा दो। अच्छा चलिए चलिए हो गया। अल्लाह सुख रखे। বড় লাগবে এইটাই কাটো ইমরান তুই এটা ধর, এটা ধর, আমি দিয়ে চালু করি। এর উপর
غريب ورحمته إلهي يوشك المجلس غريب ورحمته غريب ورحمته غريب ورحمته يمتد الله رحمته إلهي يا بشر يمتد الله إلهي يرضوانا سسبي بروالا مريم رحمته إلهي بنش فاروقي وفاروما رحمته إلهي بنش فاروقي وفاروما مريم وفاروما رحمته إلهي بنش فاروقا مريم وفاروما رحمته شكر بلو سجاب رحمتهم إلهي منبري مسجد وقبر ستارامته إلهي বাকি সমস্ত ব্যক্তিরা মসজিদ কিবলার মহব্বতে ভালোবাসায় তার আদেশে আপনাদের মজলিসে এসে বসাটা জরুরি এবং বসাটা আদব। আমরা যদি ওলির দরবারে এসে বেয়াদবি করে ফেলি, আল্লাহর ওলিরা অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে, অসন্তুষ্ট মূলত কি হবে? আর একটু জোরে বলেন। আল্লাহর ওলি যদি অসন্তুষ্ট হয়, অসন্তুষ্ট মূলত কে হবে? আল্লাহ হবে অসন্তুষ্ট। আল্লাহর বন্ধুর সঙ্গে বেয়াদবি করলে, আল্লাহর ওলির সঙ্গে বেয়াদবি করলে মূলত বেয়াদবিটা কার সাথে হবে? আল্লাহর সাথে হবে। আমার আল্লাহ বলেছেন যে আমার বন্ধু ওলির সাথে বেয়াদবি করবে, শত্রুতা করবে, বিরোধিতা করবে, হে বান্দা তৈরি থাকো, আমি আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। আমি আপনি কি আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবো? জোরে বলেন পারবো? যদি না পারি তাহলে ওই দরবারের উদ্দেশ্যই আমরা এসেছি। এই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো কাজ করলেই বেয়াদবি হবে। এটাই প্রমাণ যে আল্লাহ সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে হবে। তা আমরা যদি যুদ্ধ করতে পারি আল্লাহর সাথে, তাহলে ওই দরবারে যা ইচ্ছা তাই করবো, আমাদের কোনো দরকার নেই। আর যদি মনে করি না আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে পারা যাবে না, আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব না, তাহলে আর বাইরে ঘোরাফেরা করবেন না, অযথা সময় নষ্ট করবেন না। চলে আসে আল্লাহর ওলির দরবারে, চলে আসে। সম্মান দায়িত্বে রাখবো, আল্লাহর ওলির দরবারের মর্যাদা রক্ষা করবো। আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করে। সকলে বলি আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আসুন মূল আলোচনায় ফিরে যাই। আমি কালামুল্লাহ থেকে একটি আয়াত পড়ছি। এই আয়াতের মধ্যে আমার আল্লাহ পাক বলছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের ডাক দিয়ে বলে, বান্দা রে, আমি দুনিয়ার জমিনে এমন কিছু মানুষদেরকে পাঠিয়েছি যাদের আল্লাহ পাক বলছে, বান্দা তোমাদের কোনো ভয় নাই, তোমাদের কোনো চিন্তা নাই, তোমাদের কোনো ভয় নাই, কোনো চিন্তা নাই, কবরেও কোনো চিন্তা নাই, দুনিয়াতেও কোনো চিন্তা নাই, আখিরাতে কোনো চিন্তা নাই, মিজানে কুরসিরাতে কোনো চিন্তা নাই। ওই ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ পাক বলল, তারা দুনিয়ার জমিনে উন্নত নয়, তারা হলো আমি আল্লাহর প্রিয় মাহবুব বান্দা,
যারা আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আমি আল্লাহকে প্রেম করার জন্য যারা স্বার্থ সাধনা করেছিল والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله رب العالمين কালামুল্লাহ কোট করে দিয়ে দেয় বান্দারে আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যারা সাধ্য সাধনা করেছে তাদের সাধ্য সাধনা করার কারণে তাদের সাধ্য সাধনাগুলোকে আমি আল্লাহ বিফলে দেব না আর আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তাদেরকে অনেক সঠিক রাস্তার ঠিকানা দিয়ে দেব। ও মুসলমান এই মূর্তি দরবার শরীফে আমরা যা উপস্থিত হয়েছি বাবা একটা উদ্দেশ্য আছে এই উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় দুনিয়ার অনেক ঝামেলা আমি যেমন আমার মসজিদের তারাবির নামাজ না পড়িয়ে আপনাদের কাছে চলে এসেছি আপনারা আপনাদের বাড়ির কাজ বন্ধ করে এসেছেন উদ্দেশ্য একটাই হলো এই উদ্দেশ্যটা হলো আল্লাহর ওলির দরবারে এসে আল্লাহর ওলির সোহবতে থেকে আল্লাহর ওলির কদমে থেকে একমাত্র উদ্দেশ্য ওলির সোহবতে থেকে আল্লাহর ওলি হয়ে বাড়ি যেতে চান। আর একটু জোরে বলেন উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য আল্লাহর ওলির দরবারে আসার উদ্দেশ্য আল্লাহর ওলি হওয়ার উদ্দেশ্য। কিভাবে হবে? কোরআন শরীফ দেখেছেন আপনারা এই কোরআন শরীফটা রাখা হয় মেহের কাঠের উপরে রাখা হয় বাবা রাত গভীর হচ্ছে টেনশন নেবেন না খেয়াল করেন কথা দিকে লক্ষ্য রাখেন আর মসজিদের দিকে ধ্যান রাখেন কথাগুলো কান দিয়ে শুনবেন আর আমাদের দয়াল মসজিদের দিকে আপনার অন্তরটা লাগিয়ে রাখবেন তার চেহারাটা সামনে আনবেন তবেই আপনি আজকের এই বরকতপূর্ণ রাতে ফয়েজ বরকত আপনি পাবেন। গাছের গুড়ি রাস্তায় পড়ে থাকে যে গাছের কাঠটা পড়ে থাকতো কাঠের পিছা করে পুকুরে ভালো করে লক্ষ্য করবেন এটা কাঠ বড় গাছের গুড়ি পড়ে আছে পুকুরে পিশাব করছে মানুষের পিশাব করছে ছাগলের পিশাব করছে কয়টা পড়ে থাকে কিন্তু ওটা কিছুদিন পরে ওই কাঠ চেরাই করে মিলে গিয়ে সুন্দর করে কাটিং করলো ওটা ফার্নিচারে গিয়ে ওটা নেহের কাঠ তৈরি করলো ওই নেহের কাঠটা কোরআন রাখা হলো। মুসলমান লক্ষ্য করে রাখো আমি মুখে কাজ হলো আল্লাহর বান্দাদের সতর্ক করা এই চিন্তা ভাবনা করতে শরীর ভাই আমার এই কথাটা আমার হৃদয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে সেটা আলেম হলে বড় মানে বড় কিছু একটা ভালো করে জায়গা নেই रब्बी তিনি মতো ভাব পুলিশ যে কি মানে বিরাট টিচারটা তিনি পুলিশের বড় অবস্থা দিতে হবে তো ভয়ানক আমাদের কোন পারবে ওদের তো ভূমিকা সেই একবার কমিশনার দাম থাকে আমি ভাবলাম বলতে হলো আমরা যে হইছি কারণ ওই কথা মিলাতে গিয়ে দেখলাম কিতাবের মধ্যে এসেছে وما هوتيان ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি তার মুরিদদেরকে নিয়ে বাইনা আহাদিম বর্ণনা দিতে লাগলেন তারা দরবারে বসে ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বক্তব্য দিচ্ছেন একজন মুরিদ তাকে বলল আমাদের মুর্শিদ আমাদের পীর আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে আপনি তো কিছুক্ষণ আগে একটা হাদিস বললেন ওই হাদিসের বর্ণনা এমন আপনি বললেন যে মায়ের দিকে একবার সুন্দর দূরে তাকায় যে মায়ের দিকে যে বান্দাটা মায়ের মুখের দিকে একবার ভালো নজরে তাকাবে তাকে আল্লাহ পাক হজের একটা সওয়াব দান করবে এবার পাবে মানে কাবা ঘরে হজ করলে যে হজের সওয়াব পায় এই সওয়াবটা সে পাবে আর যে ব্যক্তিটা আল্লাহর মুখের দিকে তাকাবে আমি মানে গাজালি বলছি ওই ব্যক্তিটা হজের সওয়াব পাবে না ওই ব্যক্তিটা স্বয়ং কাবার মালিককে পেয়ে যাবে। আমরা তো বলে সুবহানাল্লাহ মালিককে
ইয়াকুবা ও মুসলমান আমার নাম কাবার মালিককে যদি পেতে হয়, কাবার মালিক যদি আমার বন্ধু হয়ে যায়, কাবার মালিক যদি আমার আকা হয়ে যায়, কাবার মালিক যদি আমার প্যারা হয়ে যায়, আশিকারা আর জুয়ে দিগারা, আশিকারা আর জুয়ে দিগারা, আর তুলেরা রঙ্গ বুয়ে দিগারা, তুজরে বাবা আর তুজরে মারহাবা, আর তুলেরা রঙ্গ বুয়ে দিগারা, এই জমিরা আসমানে দিগারা, আর তুজরে মারহাবা। আল্লাহ পাক তোমাকে হয়ে যাবে। আমি নবী বলছি, আমি নবী বলছি, আমি নবী বলছি, প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহর ওই সঙ্গে মিলাদ হয়ে যাবে। আর বলো বেরাস্তা লিখা আছে আল্লাহ নবী বান্দা তাদের গান করে রাখি, ওই নূরের উপরে গান করে রাখি, আল্লাহ ওলির দিকে যখন তোমরা তাকাবে, আমি আল্লাহ পাকের কুদরতি কদম তোমাদের দেখা হয়ে যাবে। কাল কিয়ামতের দিন না হয়ে যায়, অন্য দলে চলে যায়, অন্য যদি মানে জামাতে চলে যায়, কিয়ামতের দিন সব আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। আল্লাহ নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। হযরত মৌলানা সৈয়দ শাহ सूफी मुर्शिद परवाग हमारे, हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी परवाग हमारे, हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी मुर्शिद रफीक हमारे, हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी मुर्शिद रफीक हमारे, हजरत मौलाना सैयद शाह मुर्शिद सूफी फारूक हमारे, हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी मुर्शिद फारूक हमारे, दरबारे अक़दार, दरबारे अक़दार, नतून हुजरा सरे, नतून हुजरा सरे, रहमती अंजुमन, रहमती अंजुमन, हाथियारा सरे, हाथियारा सरे, कोट मले सरे, कोट मले सरे, मुल्टी सरे, मुल्टी सरे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी मुर्शिद परवाग हमारे, हजरत मौलाना सैयद शाह मुर्शिद सूफी परवाग हमारे, हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी मुर्शिद रफीक हमारे, हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी मुर्शिद रफीक हमारे, हजरत मौलाना सैयद शाह मुर्शिद सूफी फारूक हमारे, हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी मुर्शिद फारूक हमारे, दरबारे नारे तकबीर, আল্লাহ রহমত। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমত। আমাদের প্রিয় মুর্শিদ বিসমিল্লাহ দেব সাহেব বরকত নামাজ পড়ে মুর্শিদ রাসূলুল্লাহ আমিন। আমার বক্তব্য যতই আসা যাবে একটু ডাক্তার বেজি তাই মনে হয় আল্লাহ ওলিদের একটা পরপতি আলাদা। আল্লাহ ওলিগণেরা আল্লাহ বরকত দিন। আমাদের প্রিয় বন্ধু, যারা কখনো এইবারই পারেন না কারোর সাথে। আল্লাহ রহমত। আল্লাহ রহমত। আল্লাহ পাক এই সমস্ত প্রিয় মানুষদের সান্নিধ্যে আমাদের আকাশ তৌফিক দান করুন। দেবে জি, হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। আজ আছে আমরা সম্পদ হারিয়ে ফেলে আমাদের আর পাবো না। আচ্ছা দোয়া করি। যে ভাইরা হুজুর কিবলার সঙ্গে মোলাকাত করতে চান, আপ ঠিকানায় চলে আসুন। আচ্ছা আমি হুজুর দোয়া করি। কিবলা বসে আছেন।
আল্লাহ লাইক করবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ লাইক করবে मुलाकात करते আল্লাহ जान কবুল থাকবে আল্লাহ जो भाई हुजूर किबला से मुलाकात करना चाहते हैं आज पूरा शरीफ में खड़े हैं हुजूर किबला बैठे हुए हैं आनते पारे আল্লাহ जय हो आंसर करिए अभी इधर ही मौलाना इकबाल साहब जी আপনার সময় করে হয়েছে আপনি गाइड से आप आ गए कोई बात চলে আসুন আপনার সময় হয়ে গেছে চলে আসুন মৌলানা ইকবাল সাহেব আপনি চলে আসুন তো যেটা বলছিলাম अल्लाह আল্লাহর শরীরে নেক নজর যদি একবার কারোর উপর পড়ে যায় কিছু বলবেন তো আপনার যা জীবনটা গুরু ধন্য মহারাজ হয়ে যাবে বরকত দিন তার জন্য সব মুর্শিদ হাজির আছে তিন চিন্তা জিনিস করবেন প্রয়োজন আদব খিদমত আল্লাহ আর মহব্বত সময় স্বল্পতা এটা যেহেতু আমি প্রভাব দেওয়ার জন্য প্রভাবের জন্য সেজন্য আলোচনা দীর্ঘ না করে আমরা সবসময় বসে থেকে প্রভাবে এসেছি তার ধ্যান রেখে আমরা আমাদের দায়িত্ব বাড়াচ্ছে প্রতিটি কাজ আদবের সঙ্গে চালিয়ে যাব আল্লাহই বেরাপার ইনশাআল্লাহ সে দায়িত্ব আল্লাহই আমাদের আজকের আশা আল্লাহ পাকের দরবারে যেন কবুল হয়ে যায় এবং বসে হুজুর বিসমিল্লাহর কদমে ওসিলায় আল্লাহ যেন আমাদেরকে মাফ করে দেন সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন আমিন এখন আপনাদের সামনে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ খুব সুপরিচিত দরবারের একজন খাদেম জি আল্লাহ দরবারের একজন খাদেম যোগ্য আলেম দিন হ্যাঁ হ্যাঁ জি যারা হযরত মাওলানা ইকবাল হোসেন সাহেব তিনি অনেক দূর থেকে এসেছেন তিনি মূল্যবান কিছু আলোচনা করবেন আপনারা আমরা সবাই নিশ্চিতভাবে শুনবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক করুন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম जो भाई अभी आए हैं हुजूर किबला से मुलाकात करना चाहते हैं आज पूरा शरीफ में आ जाए আল্লাহ সুস্থ করে দেবে সুস্থ করে দেবে ইনশাআল্লাহ একদম ঘাবড়াবেন না সুস্থ হয়ে যাবে हुजूर किबला से मुलाकात करना चाहते हैं आज पूरा शरीफ में आ जाए চিন্তা করবেন না, আল্লাহ সুস্থ করে দেবে ए भाई हुजूर किबला করবে দেখা করতে চান তিনি খাস উতরায় চলে আসুন হুজুর কিবলা বসে আছেন ए भाई हुजूर किबला করতে মুলাকাত করতে চান আজ पूरा शरीफ में चले আসুন হুজুর किबला বসে আছেন Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. অবশ্যই সেটাতে আমার আরেকটু মানে কোরআনের দিকে টেনে আসতে হবে জি মানুষের কাছে সময় খুব কম আছে বুঝলেন তো যতটুকু দিলের মধ্যে ভরে নিতে হবে সব খবর রেখে দেখি বুঝলেন তো ওই জন্য বিশেষ করে মাঝে মধ্যে खुतबा मसूना के बाद मैंने रिसाइल मुबारक का तिलावत करने का सरफ हासिल किया। नामदार मदीने के ताजदार नाइबे परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में झूमकर दिल लगाकर आका के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन नबी वलकम व अला आलिहि व असहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का उर्स मुबारक सभी जायरीनों को मुबारक हो जितने हजरात यहाँ हमारी माँ बहनें और हमारे भाई बिरादर वतन तशरीफ लाए हुए हैं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाजिरी को अपने महबूब के सदके में और पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना फारूक साहब किबला की दुआओं के बरकत से सबकी मुरादों को पूरी करे।
और सब खुशी खुशी अपने घर वापसी आए और अपने दामन मुराद को मुराद से भर कर जाए। मैं हर साल यहाँ आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फضل है और उनसे मुबारक में तशरीफ आवरी होती है। लेकिन मैं जाहिरी नजर से गुजारिश करूँगा कि जो लोग हुजूर किबला से मुलाकात कर चुके हैं, फारिग हो गए हैं, उनसे गुजारिश है उनको बाहर न रहे। जिस वक्त जो मौका के लिए आप हज़रात आए हैं मस्जिद के अंदर महफिल पाक का एहतमाम हुआ है, आप हज़रात मस्जिद में तशरीफ रखें और अदब के साथ बैठें। कि देखिए यहाँ जितने लोग हैं सुनने के लिए, अपने घर से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, दुआ के लिए, खैरियत व आफियत के लिए लोग यहाँ चलकर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के यहाँ आए हैं कि कुछ वहाँ बटेगा, हुजूर का खैरात व सदक़ात बटेगा, हम उसे हासिल करेंगे। किसी ने कहा है जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वो खो जाता है। पीछे घूम के जरा नजारा कर दीजिए, जलसाखानी में लोग आए हैं कि सोने आए हैं पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए हमारे नौजवान हुए हमारे सब लोग हैं, मस्जिद का भी एहतराम नहीं हो रहा, जबकि इनको जग कर 2 घंटा बैठने में इतनी परेशानी है। अभी मेरे बाद हुजूर किबला जाएंगे जानी घर में और उनके नूरानी इरफानी बयान का बड़ा समाप्त करेंगे। ये क्या जरूरी है इसलिए हम उसी वक्त जानेंगे, उसी वक्त सुनेंगे। मैं अपनी बात नहीं बल्कि रसूल पाक की बात, खुदा का बात आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ मैं बैठा हूँ। तो लोग सो रहे हैं तो सुनाऊं, बताऊं, किसको समझाऊं? हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, इसलिए आप इधर आ जाइए, इधर सामने तो ये बोलेंगे तो जबान ईद की होगी, बोलना थोड़ा ना होगा, ये ज्यादा बोलिए कम। दूसरी बड़ी अल्लाह सल्ली अला, थोड़ा तैयार होकर कहिए सैयदना मौलाना मोहम्मद वाले वालानी वासाबी वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जबान तो बंगला नहीं है, आपको बताया हो जाएगा, सुनिएगा कुछ और तो मामला तो फंस जाएंगे। तो इसलिए गुजारिश ये कीजिए कि हम उसको हवास में सुने अल्लाह रसूल की बात। जब दुनियावी बात कोई करता है, जब दुनियावी बात कोई करता है तो सामने वाला बोलता है तो बगल वाले को खोदते रहता है, उसको ठकाते रहता है। ऐसे सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हो? हाँ, जब तक वो सुनता है सुनाता है और जब देखता है कि अभी सुनने के कायल नहीं है तो अपनी बात को भी खत्म कर देता है। तो आप सुनना चाहेंगे तो हम देख हम देख रहे हैं कि आप तो सुनने के मूड में है या सिर्फ একটা হয় শরীর मुकद्दस बयान को आगाज करूंगा तो कहिए कि बयान के बोलो अल्लाह का सदी अल्लाह। এটা হলো কোরআনের বায়ান, যেটা পীর सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी तो सुनिए जावे जिसमें वालिकुम वालिकुम वालानी व साहबी वालिकुम जी जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह আল্লাহ সব কিছু দিয়েছে, কিছু বাকি নেই। আল্লাহ সব কিছু আপনাকে नात शरीफ बोलते हैं, ये भी खुदा का, ये भी रसूल का हमद है। नज़्म में हो या नज़्म में हो, नबी का तारीफ ही है और नात करना हज़रत हसन की सुन्नत भी है। तो इसलिए मैं दो चार शेर मैं आपके हवाले करूंगा और उसके बाद फिर देखूंगा कि आप सुनेंगे तो और सुनाऊंगा, वरना मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ा दूंगा और बयान जो करना है हमको वहाँ तक पहुँचा कर मैं अपनी तकरीर को महसूस करूंगा। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ मोहम्मदों के नाम और समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुंह से बोलिएगा। किसके मुंह से? अपने मुंह से सुभान अल्लाह बोलिएगा, फायदा आपको होगा। तो इधर उधर पैसा उधार नहीं मांगना, अपने मुंह से बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं देखता हूँ कि आप लोग सुनते हैं कि नहीं, मैं पढ़ता हूँ, मोहब्बत से सुनिए। रुक जाएगी टूट कर दिल
धड़कने दिले रुक जाएगी, टूट कर दिल बिखर जाएगा। सुनने वाला रब्बुल आलमीन है और बुलवाने वाला भी रब्बुल आलमीन है। आप बांग्ला में बोलिए, आप इंग्लिश में बोलिए, आप फारसी में बोलिए, आप मराठी में बोलिए, आप गुजराती में बोलिए, जिस तरह बोलिए, बोलना ये आपका काम है, लेकिन समझा देना ये रब का काम है। बोलना ये आपका काम है और समझा देना ये रब का काम है। और रब जिसे चाहता है उसको अपने करीब कर देता है। जिसे चाहता है रब उसको अपने करीब कर देता है और जिसे चाहता है उसको हिदायत दे देता है और हिदायत पाकर वो कामयाब हो जाता है। मोहतरम सामने करम, थोड़ा सा बेदार होइए। मेरी बात को अगर सुनना है तो थोड़ा बेदार होइए और बेदार होके फिर सुनिए और उसके बाद तब समझ में आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब मौलाना बयान कर रहे थे कि ब्याज देना हराम है। क्या है? ब्याज देना हराम है। रात के आधे हिस्से खत्म हो चुके थे, आधी हिस्सा जो है बचा हुआ था। 3 पहर निकल चुका था, 1 पहर बाकी था उसको होने में। और उस वक्त की तकरीर आएगा, ये धड़कने दिले की रुक जाएगी। आप को पकड़ लीजिए, खुदा का रस्सी है। आप हजरत निजामुद्दीन औलिया को पकड़ लीजिए, खुदा का रस्सी है। आप हजरत दादा देवी अली को पकड़ लीजिए, खुदा का रस्सी है। पता ये चला कि जब उस रस्सी को कोई मजबूती से पकड़ता है तो वो रस्सी कोई और नहीं, मूंछ की रस्सी नहीं, तार की रस्सी नहीं, खंभे की रस्सी नहीं। खुदा ने फरमाया कि जो मेरे खास बंदे हैं उसको पकड़ लो, वो मेरा रस्सी है। और तेरा मंजिल, तेरा मकाम इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर होगा। उन्हीं के जरिए तुम इहदिना सिरातल मुस्तकीम पा जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं के जरिए इहदिना सिरातल मुस्तकीम पा जाओगे। आज कुछ लोग हैं, कुछ जमातें हैं जो खाली अभी देखने की दुआ करती है, चलने की बात नहीं, देखने की बात करती है। एक जमात है जो देखना चाहती है कि वो रास्ता क्या है। अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा दे। वो आज तक देखा ही नहीं, खाली नमाज पढ़ना, ठेला फोड़ना है। रास्ता ढूंढ रहा है कि हमें वो रास्ता दिखा दे। और यहाँ है कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पे चला दे जिस पर तूने अपना इनाम व इकराम रखा है। उस रास्ते पर चलना अलग है, देखना बोलिएगा तो बोलेंगे। चलना अलग है और देखना, अरे जो देख लिया वही ना चलेगा। जिसको अभी दिखा ही नहीं वो चलेगा कहाँ? जिसको अभी दिखा नहीं वो चलेगा कहाँ? तो वो अभी देखने की फरियाद कर रहा, हमको दिखा दे। वो कौन है? वो कौन है जो देखना चाहता है? न पीर मानता है, न मुर्शिद मानता है, न खानका मानता है, न मजार मानता है, न वली मानता है, न रसूल मानता है, कुछ नहीं मानता। वो कहता है कि हमको रास्ता दिखा दे। और दिखाने वाला को मानता ही नहीं है तो फिर रास्ता दिखेगा कब? वो रास्ता मिलेगा कहाँ? उस मकाम पे पहुंचोगे कब? तेरा मकाम में आखिर होगा कब? तुमको इनाम से नवाजा कब जाएगा? तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये खानकाहों का मामला है। खानकाहों से ये रास्ता मिल रहा है, चाहे कहीं का खानका हो, वो रास्ता देने के लिए खोल रखे हमने दरवाजा को। आओ, हम तक आओ। और रास्ता चाहिए तो मैं तुझे रास्ता दे रहा हूँ। जिस रास्ते पे चलोगे तो खुदा भी मिल जाएगा। वो सलाम अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम, अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम। उस नबी पर हो बार बारो सलाम, उस नबी पर उस नबी पर हो बार बारो सलाम। मोहतरम सामने इकराम, दस्ते बैत का जो सिलसिला है ये यहाँ से नहीं है। बहुत ऐसे हमारे भाई हैं जो
तक मुरीद नहीं हुए होंगे। बहुत ऐसी हमारी माँ बहनें हैं जो आज तक किसी पीर का मुरीद नहीं होगी, किसी पीर का दामन नहीं थामी होगी। बहुत ऐसी माँ बहन हैं, बहुत ऐसे हमारे भाई हैं, आते हैं, किस्मत है, आते हैं, चले जाते हैं। और उनसे जब कहा जाता है तो कहते हैं अभी वक्त नहीं हुआ, अभी वक्त हुआ नहीं है। क्या मतलब? अभी हमको गुनाह करना है, अभी हमको कुछ डंडी मारना है, अभी लोगों को बरगलाना है, अभी झूठ बोलना है, अभी माल को हड़पना है, इसलिए मुरीद हो जाएंगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए अभी वक्त हुआ नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुर्बान जाइए, मुरीद होने के लिए वक्त की जरूरत 7 साल का अगर बच्चा या बच्ची हो गया तो शरीयत का मसला है कि उसको गार्जियन नमाज पढ़ने का तरकीब करे, उसको नमाज पढ़वाए। 10 साल का हो जाए तो माल पर नमाज पढ़वाओ, गार्जियन का ये जिम्मेदारी है। और उसके बाद जब वो बालिग हो जाए तो आप किसी पीर के दामन करम से उसको वाबिस्ता कर दो। सुभान अल्लाह, उसको पीर के दामन करम से वाबिस्ता कर दो। मौत का कोई भरोसा है जी? मौत का कोई भरोसा है? किसी की मौत का कोई भरोसा है? अगर अपनी मौत से कोई पसंद नहीं और सामान 100 बरस का है, फल की अभी है, अभी चले गए। एक खातून थी, मियां बीवी का मामला थे, बीवी मुरीद हो चुकी थी लेकिन जवान मुरीद नहीं हुआ था। और उसकी उम्र जानते हैं कितना था? उसकी उम्र, शौहर का उम्र 60 साल का था, वो बूढ़ा 60 साल का हो चुका था। बार बार बीवी हिदायत करती थी कि सुनिए ना मेरे सरदार, सुनिए ना मेरे सर के ताज, सुनिए ना मेरे मालिक, आप किसी पीर के दामने करम से काहे नहीं जुड़ जाते हैं, काहे नहीं वाबिस्ता हो जाते हैं? तो जानते हैं क्या कहते थे? जरा गौर के फिक्र के साथ सुनिएगा, मैं सिलसिले का बात बता रहा हूँ, खान का ही बात बता रहा हूँ। कहा कि मैं पीर को तलाश रहा हूँ कि पीर मुझे मिल जाए, लेकिन आज तक मुझे पीर मिला नहीं और मेरी उम्र 60 साल की हो गई। बीवी कहती है कि आप कैसा पीर तलाशते हैं कि पीर से मुलाकात नहीं होती है? कहा कि मैं पीर को ढूंढना चाहता हूँ, उस वैसा पीर को तलाश रहा हूँ जो शरीयत और सुन्नत के पाबंद हो, शरीयत और सुन्नत का पाबंद हो। जानते हैं किसी मोहल्ले में किसी पीर का आना होता था और वो वहां पहुंचता था तो शरीयत का चश्मा लगाता था। कौन? जो 60 साल का बुढ़ा था, वो शरीयत का चश्मा लगाता था और देखता क्या था जानते हैं? सिर्फ कमी निकालता था। 3 सांस में पानी पीना है, अगर पीर साहब 1 सांस में पानी पी गए तो वो देख लेता था कि ना ना ना, ये पीर होने के लायक नहीं है। बोलिए, ये पीर होने के लायक नहीं है। 3 सांस में पानी पीना, एक ही सांस में पी गया। 3 सांस में पीना था, 1 सांस में पी गया। कहा ना, इसको हम अपना पीर नहीं बनाएंगे। फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, किसी जलसे में बड़े पीर आ रहे हैं, नामी गिरामी पीर आ रहे हैं, ये वहां पहुंचा और देखता है कि शरीयत और सुन्नत वाला है कि नहीं। इसी आसने में देखते देखते 60 साल निकल गया। हज़रत मोहतरम जब वहां गया, मुरीदों का हंगामा स्टेज पर हुआ। पीर साहब उतर रहे थे, मुरीद मुसाफा करने के लिए भीड़ लगा दिए थे। पीर साहब को दाहिना पैर दाहिने जूता में डालना था, जल्दी के वजह से बायां पैर डाल दिए। वो देख लिया शरीयत का चश्मा से 60 साल वाला, और फिक्र के साथ मेरी बात को नोट कीजिएगा। 60 साल का जो आदमी था वो देख लिया कि ये पीर के लायक नहीं है, इसलिए कि दाहिना पैर पहले डालना था, ये बायां डाल दिया है। हज़रत मोहतरम इसी आसने में 60 साल निकल गया। देखते देखते बीवी कहती है कि मेरे सरताज, मेरे मालिक, मेरे खामिन, 60 साल हो गया, अरे किसी पीर के दामने करम से जुड़ जाइए, मौत का कोई भरोसा नहीं है। हज़रत मोहतरम ये बात उसके ज़हन और फिक्र में आ गई और उन्होंने जब ये कही कि कब मौत आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं, रात का तारीखी था और अहद कर दिया कि मैं कल इंशाअल्लाह रहमान किसी भी कामिल मुर्शिद से बैठ हो ही जाऊंगा। लेकिन 3 पहर निकल चुके थे, एक हिस्सा रात का बचा हुआ था। अब ये सोच रहा है कि अगर मैं कहीं सोऊंगा, कहीं मैं सोऊंगा और कहीं चल दिया, मिनहा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा,
फिर हम सेठिया जाएंगे, फिर साहब मिलेंगे भी नहीं, मेरा मामला खत्म हो जाएगा। इस डर से वो सो नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह होने वाली थी, ये हाथ करके शहर से निकला और शहर के चौराहे पे बैठ गया और कहा, जानते हैं क्या, जो इधर से आज सबसे पहले आएगा, मेरी नजर उस पर पड़ेगी, उसकी नजर मुझ पर पड़ेगी, मैं उसको अपना पीर बना लूंगा और मैं उसका मुरीद बनूंगा। हज़रत मोहतरम, 3 हिस्सा तो निकल चुका था, एक हिस्सा बचा हुआ। जानते हैं कौन आया? चोरों का टोली उधर से आ रही थी, चोरों का टोली आ रही थी और आगे आगे तो था ना चोर का खलीफा था, चोर का हेड था, सरदार था, चेहरा छुपाए हुए, लोगों से बचने के लिए चेहरा छुपा रखा था और आगे आगे आया। जैसे ही इसकी नजर पड़ी, उसकी नजर इस पर, इसकी नजर उस पर, देखा न देखा आओ न देखा ताओ, दौड़ कर गया और पैर को पकड़ा, कहा आप ही हमारे पीर हो। क्या मामला है भाई? हम चोरी करने निकले हैं, डकैती करने निकले हैं, राजनी करने निकले हैं, कि हमको पकड़ लिया पैर और अपना पीर बना रहा है। मैं उसका पीर नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ, मैं तो रहलन हूँ, मैं डाकू हूँ। कहा कुछ नहीं, मैं आपको अपना पीर बनाऊंगा, आप वादा कीजिए कि आप मुझको अपना मुरीद बनाओगे। जब तक काफले के जितने साथी थे आगे निकल गए और इस महाराज को पकड़े हुए, कस के पकड़े हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि झटका दे के निकल जाए। वादा करा रहा था और खुदा से पहले ही हाथ लेकर बैठा था, परवरदिगार आलम जो इधर से आएगा मैं उसको अपना पीर बना ही लूंगा। हज़रत मोहतरम, उन्होंने अपनी बुराई शुरू की। क्या मैं चोर हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं डकैत हूँ, मैं रहलन हूँ, मैं लुटेरा हूँ, मैं तेरा पीर नहीं हूँ। वो सामने वाला जो बुरा था ना, कहा कि आप तो पीर साहब और मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, इसलिए कि जितने आते हैं मोहल्ले में सब अपनी तारीफ अपने से करते हैं या अपने मुरीदों से कराते हैं। आप वो सब नकली हैं, डुप्लीकेट हैं, जो अपनी तारीफ अपने करते हैं या कराते हैं। आप ओरिजिनल पीर हैं, इसलिए कि आप अपनी बुराई खुद अपने से कर रहे हैं। आप तो और नहीं छोड़ेंगे। और पकड़ लिया कस के, कहा कि मामला तो बेसमझ हो गया, अब कैसे इससे छुटकारा हासिल करे। कहा कि सुनो, पीर का आदेश मानना मुरीद के लिए कैसा है? पीर का आदेश मानना, पीर साहब अगर आपको वो कह दे कि कल नहीं जाना है, जाइएगा? बोलिए ना जी। आपको अगर कह दे कि कल नहीं जाना है, यहीं रहना है, आप जाएंगे? और अगर चले जाते हैं तो नाफरमानी है कि नहीं, बेअदबी है कि नहीं? अब उसने सोचा कि अब इस तरह से इसको समझाएं ताकि देश छूटे, जान बचे, मामला खत्म हो जाए। हज़रत मोहतरम, कहा कि पीर का आदेश मानना मुरीद के लिए कैसा है? कहा कि पीर का आदेश मानना मुरीद के लिए बहुत जरूरी और फर्ज है। हज़रत मोहतरम, कहा कि ऐसा है कि देखो ये सामने एक घर है ना, दौलतमंद का घर है, अमीर व कबीर का घर है, यहाँ जगह तो सदका तो खैरात पढ़ते हैं, मैं उस घर में जा रहा हूँ और चोरी करूंगा, चोरी का माल लाकर तुझको दिखाऊंगा, तब तो मुझे छोड़ दोगे। कहा कि हरगिज़ नहीं पीर साहब, अगर आप सर मांगते तो मैं सर दे देता, लेकिन पैर छोड़ने के लिए मत बोलिए। सुभान अल्लाह। आप वादा कीजिए कि मैं तुझको अपना मुरीद बना लूंगा, यकीनन मैं आपके पैर को छोड़ दूंगा। मोहतरम सामने कराम, पैरवा को कौन है ठीक से जानिए, वो कौन सा पैर है, वो कौन पैर है आप उसको ठीक से जानिए। मार्फत का मकाम होता है जहाँ गौसे आजम खड़े थे और